صدر ٹرمپ کو آپ ابھی سن رہے تھے اور انہوں نے فیلڈ مارشل صاحب کی تعریف تو کی آبویسلی کیونکہ ہم نے جنگ جیتی ہے، لیکن شہباز شریف صاحب کی بہت زیادہ تعریف کی ہے. زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، شاد بھٹی صاحب، عامر الیاس ران صاحب. زبیر صاحب، آپ جیلس تو نہیں فیل کر رہے جب ٹرمپ صاحب تعریفیں کر رہے تھے شہباز شریف صاحب کی؟ نہیں، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. مجھے افسوس اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے کہ وہ شہباز شریف کے تو کام آتی ہے وہ تعریف، لیکن پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے لیے کچھ بھی نہیں اس میں رکھا ہوا، کیونکہ وہ تعریفیں تو پچھلے ہم کافی عرصے سے سن رہے ہیں نا. اس کے سب سے بڑا ثبوت جو ہونا چاہیے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ آنی چاہیے. پاکستان میں انویسٹمنٹ ہیز پلنجڈ ٹو این آل ٹائم لو. پاکستان موزمبیق، ایتھوپیا، کانگو، عمان، ملائیشیا، انڈیا، بنگلہ دیش ان سب سے پیچھے ہے. تو کس کام کا ہے آپ مجھے بتائیں نا. آپ میں کیا بتاؤں، عامر ریاض بتائیں گے. کچھ نہیں چاہیے. آپ لیڈ کا، آپ کا تعلق لیڈ سے، بات سن لیں بھائی، ٹائم کم ہے. جی لیڈ کا جو تعلق ہوتا ہے نا، لیڈ صرف تعریفوں میں خوش ہوتا ہے. And very effective intervention to achieve ceasefire between India and Pakistan potentially averted loss of tens of millions of people. You have truly proved to be a man of peace. And let me say, Mr. President, you are truly savior of South Asia. شہباز شریف نے ٹرمپ کو مین آف پیس کے ساتھ ساتھ اب سیویئر آف ساؤتھ ایشیا قرار دے دیا ہے. یہ اس ٹائم کہا گیا ہے جب ٹرمپ کہتا ہے کہ ایران کو ہم 10 دن کی مہلت دیتے ہیں، اس کے بعد نہیں تو کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، اور ایران کے ساتھ کچھ بہت برا ہو سکتا ہے اگر ایران ہمارے ساتھ ڈیل نہیں کرتا. اس کے بعد میرے پاکستانیوں ایک اور چیز سامنے آتی ہے اور بتا دیا جاتا ہے کہ وہ کون سے پہلے 5 ممالک ہیں جن کی افواج غزہ بھیجی جا رہی ہیں. تو شہباز شریف کی جو ٹرمپ سے ملاقات ہوئی ہے بورڈ آف پیس کے حوالے سے، اور وہ سنا ہے کہ اس کو وہ آفیشلی اسرائیل کو وہ مان چکے ہیں اندر ہی. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ آگے وہ اب اوپنلی اس کو اناؤنس کریں گے یا وہ بھاگ جائیں گے یہاں سے پھر اناؤنس کریں گے؟ یہ اس کو کہتا ہے کیچ 22 پوزیشن، کہ آپ ایک کام کر بھی رہے ہیں، نہیں بھی کر رہے، کرنا بھی نہیں چاہتے لیکن کرنا بھی پڑ رہا ہے. ایک طرف سے نکلتے ہیں تو دوسری طرف مصیبت ہے. ٹھیک ہے نا. ادھر آپ کو ایک خطرہ ہے، دوسری طرف ایک اور خطرہ ہے. تو اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے، یہ تو اسرائیل ہے نا، یہ یزید کی حکومت کو بھی تسلیم کریں گے، جو حکمرانوں میں بدترین کوئی انتہائی بدبخت کو ہو سکتا ہے نا، وہ یزید ہے. تو یہ یزید کی سربراہی حکمرانی، کیوں کہ اس کی وجہ سے ہمارے اقتدار کو جلا مل رہی ہے، اقتدار کو طول مل رہا ہے. ہم نمسکار، السلام علیکم، ست سری اکال، جے جھولیلال. میں ہوں جی پریم مٹلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں حالات حاضرہ کا پروگرام. حقیقت یہ ہے، ابتدا میں آپ سے درخواست ہے چینل ضرور سبسکرائب کریں. دوستو، 2 روز قبل امریکہ میں صدر ٹرمپ نے جو بورڈ آف پیس بنائی ہے، غزہ میں امن لانا اور غزہ کی ریہیبلیٹیشن کرنا، تعمیر نو کرنا، اس کے لیے اس نے جو بورڈ آف پیس بنائی ہے، جس میں اس نے دنیا کے کئی ملکوں کو دعوت دی تھی. پاکستان اس کا ممبر بن چکا ہے. بھارت پہلے ممبر نہیں بن رہا تھا، اب وہ ممبر تو نہیں بنا ہے، آبزرور بن گیا ہے. یعنی وہ وہاں ان کی جو میٹنگز ہوں گی ان میں حصہ تو لے گا لیکن زیادہ سرگرم نہیں رہے گا. اب 2 روز قبل یہ جو اس کی پہلی میٹنگ ہوئی تو وہاں پر پاکستان کی طرف سے شہباز شریف موجود تھا اور امریکہ کے صدر ٹرمپ نے اس کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملانے شروع کر دیے. شہباز شریف بہت اچھا ہے، عاصم منیر بہت اچھا ہے، دلاور ہے، یہ ہے وہ ہے. اور خود شہباز شریف نے بھی
वो जैसा पहले उसने शर्मुल शेख में सदर ट्रंप की तारीफ में बहुत बहुत कुछ बोला था कि जॉर्जिया मेलोनी जो इटली की वज़ीर आज़म उसके पीछे खड़ी थी, उसने मुंह पर हाथ रख दिया था, वो मैंने प्रोग्राम किया था, यू कैन सी। खैर उसी तरह 2 रोज़ के बिल भी शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप की तारीफ में ज़मीन आसमान एक कर दिया और उसने कह दिया कि आप अमन के आदमी हैं और आप यू आर द सेवियर ऑफ साउथ एशिया, यानी जनूबी एशिया को बचाने वाले आप हैं। ज़ाहिर है उसका इशारा उस तरफ था क्योंकि सदर ट्रंप कहता है कि भारत और पाकिस्तान की जो जंग हुई वो मैंने बंद कराई और इसीलिए उसको तक़वियत बख्शने के लिए शहबाज शरीफ ने ये कहा। अब ये पूरा एपिसोड जो है, जब इसके ऊपर हम नज़र डालते हैं तो इससे नतीजा ये निकलता है कि पाकिस्तानियों को तो इससे बहुत खुश होना चाहिए कि सदर ट्रंप हमारी साइड ले रहा है, हमारी बातें कर रहा है, हमारी तारीफ कर रहा है, लेकिन दिखाई ये दे रहा है कि पाकिस्तान में जो राय आमा है, पब्लिक ओपिनियन है, इट हैज़ टर्न्ड अगेंस्ट अमेरिका। खैर वैसे भी उनके खिलाफ रहता है, लेकिन आजकल तो हद ही हो गई। अभी देखिए आपको मैं 2-4 टुकड़े दिखा रहा हूँ पाकिस्तानी टेलीविज़न चैनलों के, या जो यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, वो क्या कहते हैं। उनको इससे खुशी तो नहीं होती, उनको इससे नाराज़गी होती है। उनको ये दुख है कि आखिर ट्रंप की इस तारीफ करने से हमें क्या मिलता है, पाकिस्तान को क्या मिलता है। अभी देखिए वो जब अपना मुआवजा भारत से करते हैं, पाकिस्तान एक खलास इकोनॉमी है, $350 बिलियन की जीडीपी, जबकि भारत की $4.5 ट्रिलियन, 4,500 बिलियन, 10 गुना 15 गुना है समझो पाकिस्तान से बड़ी इकोनॉमी। जहाँ तक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का ताल्लुक है, पाकिस्तान में कुल 10-12 बिलियन डॉलर है और वो भी उनके अपने नहीं है। चीन के 6 बिलियन डॉलर हैं, कुछ ऐसे 4 या 6 बिलियन डॉलर सऊदी अरेबिया के स्टेट बैंक के पास डिपॉजिट पड़े हैं और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के भी ऐसे 2-4 बिलियन डॉलर पड़े हैं। पाकिस्तान के पास तो 1 टका भी नहीं है। तो ये सारी बातें जो है, अच्छा उसके अलावा उनको ये भी शिकायत है कि चलिए ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाए थे, तो ये पाकिस्तानियों को खुशी हो रही थी कि चलिए हमारे ऊपर 19% है, भारत के ऊपर 50% है। अब वो बात भी ख़त्म हो गई। अब भारत के ऊपर ट्रंप ने 18% टैरिफ लगाए हैं, जबकि पाकिस्तान के ऊपर 19% है, 1% ज़्यादा है। तो वो कहते हैं कि ये खाली उसकी तारीफ जो वो सिर्फ लफाजी है, एक मुंह से बोलता है, उससे हमें क्या मिलता है? ना कोई बिजनेस मिलता है, ना कोई मुआशी तरक्की होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, कुछ होता तो है नहीं सर। अच्छा ये वो ऐसा समझते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान को ईरान के खिलाफ और गजा में जो फ़लस्तीनी हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है, इसीलिए वो ऐसी तारीफें कर रहा है। यानी वो पाकिस्तान की फ़ौज से हिजबुल्लाह और हमास के जो लड़ाकू हैं उनका कत्लेआम करवाएगा। ये पाकिस्तानियों का अंदाज़ा है और कहीं कहाँ अगर देखा जाए तो किसी लिहाज से गलत भी नहीं है। पाकिस्तान की ये हिस्ट्री रही है, पाकिस्तान ने डॉलर लेके पहले भी फ़लस्तीनियों का कत्ल किया था। मैं प्रोग्राम में, कई प्रोग्रामों में आपको बता चुका हूँ। अच्छा अभी वैसे अगर भारत के ऊपर जो 18% टैरिफ लगे हुए हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊं, अभी कल ट्रंप ने एक बयान निकाला है। मैं आपको बताऊं, भारत के ऊपर जो रूस के लिए 25% रूस का तेल खरीदने के लिए टैरिफ थे वो तो हट गए, जो रेसिप्रोकल थे 25% उसको 18% कर दिया। अब क्योंकि भारत अभी तक रूस से तेल लेना टोटल बंद नहीं किया, कम कर दिया है, ये बात दुरुस्त है। अभी ज़्यादा वो सऊदी अरेबिया और इराक से तेल ले रहा है,
जो ट्रेडिशनली लेता रहता था भारत उनसे। तो इसके लिए लोग ऐसा कह रहे थे कि भारत के ऊपर फिर से ट्रंप जो है टैरिफ लगाएगा। तो कल उसने ये बात भी खुलासा कर दिया इसका कि भारत के ऊपर 18% ही टैरिफ रहेगा। और उसने कहा हमारे जो रिश्ते हैं, ताल्लुकात हैं, बहुत अच्छे हैं भारत के साथ। अब ये बातें तो पाकिस्तानियों को हजम नहीं होती कि ताल्लुकात भी अच्छे हैं, तारीफ फिर हमारी करता है, भारत को गाली देता है, लेकिन टैरिफ भारत के ऊपर कम है। अच्छा, फिर एक दूसरी खबर भी आई है, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने जो ये रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए थे ट्रंप ने सारे मुल्कों, सिर्फ हिंदुस्तान के ऊपर नहीं पूरी दुनिया के ऊपर लगाए थे, वो इमरजेंसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला था उसने, तो उसको उसने गलत गैर कानूनी करार दे दिया है और अभी वो वापस हो गए हैं। अब देखिए ट्रंप क्या करता है। तो अगर उसको देखा जाए तो फिर तो किसी के ऊपर कोई टैरिफ नहीं रहेगा, न भारत के ऊपर 18%, न पाकिस्तान के ऊपर 19%। अब देखें क्या होता है। वैसे पाकिस्तानियों को ये शिकायत है कि हमें जो ये ट्रंप हमारी तारीफ करता है तो वो हमें इस्तेमाल करना चाहता है, हमारे तरफ से इसराइल को रिकग्निशन दिलाना चाहता है, हमारी फौजों को फ़लस्तीन के खिलाफ इस्तेमाल कराना चाहता है। अब देखें क्या होता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन पाकिस्तानी अगर देखा जाए तो ट्रंप की इस तारीफ से एक 1% भी खुश नहीं है। ये अलीड की जेबें भरी हुई होती हैं, तो वो कहते हैं जी देखें दुनिया में हमारी इज्जत है। दुनिया में हमारी इज्जत उस वक्त होती है जब पाकिस्तान के अवाम को आसानी से वीज़े मिलेंगे। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम के लिए जितने अमेरिका तो कोई जा ही नहीं सकता, अमेरिका को वीज़ा लेके दिखाते, यूरोपियन शेंजन वीज़ा लेके शहबाज शरीफ का दुबई कसूर का है। वीज़ा नहीं मिलता। हालत ये है तो शहबाज तो और अच्छा फिर मैं किसको जाके कसूरवार, मोदी साहब को करूं कसूरवार? भाई पाकिस्तान की आपने इज्जत बनानी थी तो पाकिस्तान के अवाम के लिए बात करते कि देखें जी पाकिस्तान दुबई के रूलर से बात नहीं कर सकते, अमेरिका से नहीं बात कर सकते। ठीक है शेंजन जुबैर भाई जरा से नहीं बात फास्ट कर सकते। चलेंगे कि जी हमारे तो लोगों के आपने वीजे बंद कर दिए। ठीक है। जी 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 फास्ट ठीक है मैंने भट्टी जो साहब कहना था आप एग्री कर रहे हैं जुबैर साहब से? ये तो बड़ी अजीब सी बात की डोनाल्ड ट्रंप उनके नाम की माला जप रहा है शहबाज शरीफ साहब की, और अब ये पता नहीं क्या बातें बता रहे हैं। मैं तो हैरान हूं, कभी ट्रंप को देख रहा हूं, कभी जुबैर साहब को देख रहा हूं। मुझे तो लग रहा है कि व्हाइट हाउस में तस्वीर ना लगा लें कहीं ट्रंप साहब शहबाज साहब। भट्टी साहब भी जले हैं। अच्छा लगता है। बहुत सख्त जला हूँ, बहुत सख्त। अच्छा लगता है, खुशी होती है ऑन सीरियस नोट कि सदर ट्रंप साहब फील्ड मार्शल को बहुत बड़ा फाइटर कहते हैं, अजीम शख्स कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब को पसंद करते हैं, और ये 30वीं बार तारीफ हुई है। और मैं इसको पाकिस्तान की तारीफ हमेशा कहता हूँ। 90वीं मरतबा, 90 मरतबा यानी 90 मरतबा हो गए पाक भारत जंग का जिक्र किया सदर ट्रंप ने। 8 जंगें रुकवाई, ये 100वीं मरतबा कह रहे थे ट्रंप साहब। और खैर से तैयारों की तादाद अलबत्ता 5 से शुरू हुई थी, 11 तक पहुंच गई। अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता तरक्की होती जाएगी। मगर वही बात कि अब इससे आगे क्या। भारत का टैरिफ कम कर दिया ट्रंप साहब ने, भारत अमेरिका करीब आ गए फिर से। भारत ने यूरोप से मदर ऑफ ऑल डील कर ली। भारत बेक वक्त अमेरिका, रूस, चीन का बिजनेस पार्टनर। भारत दुनिया की चौथी बड़ी मईशत। भारत का ज़र मुबादला $700 अरब के करीब, और हमारे ज़र मुबादला में $6 अरब चीन का सूद पर, यूएई सऊदी अरब का $2 अरब, $4 अरब आपका पॉइंट ये क्विकली है सर। हमारा फोकस, हमारा दो जुमले हमारा फोकस कि यूएई थोड़ा सा कर्जा आगे कर दे, तेल उधार सऊदी अरब और दे दे, और फिर गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, कर्जे, सरमायाकारी, तिजारत, इसमें ट्रंप साहब की तारीफ को मैं कहाँ रखूं? ट्रंप ने जहाजों की तादाद 6 से शुरू की थी, 6 जहाज, फिर 7 किए, फिर 8 किए, 9 किए, 10 किए, और अब कहता है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो स्कर्मिश हुई थी, जो जंग होने लगी थी, उसमें 11 जहाज गिर गए थे। हर मुलाकात में ट्रंप जहाजों की तादाद बढ़ा देता है। लोग हैरान है कि ये क्या हो रहा है। क्या ऐसा तो नहीं है कि ट्रंप किसी दिन ये कह देगा कि 6 जहाज भारत के गिरे थे, 5 पाकिस्तान के गिरे थे, या सिर्फ भारत पे मुसलसल दबाव डाला जा रहा है और पाकिस्तान की तारीफें हो रही हैं? क्या मांगा जा रहा है? मेरे पाकिस्तानियों,
ट्रंप ने जो बात की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं क्या कहूँ, रब्बे करीम की कुदरतें देखें कि जब उसने एक्सपोज करना होता है, अब फिर वो किधर गए मौलवी सारे, वो बैठे फतवे दे रहे हैं कि जी ये तो फ़लस्तीन की खिदमत के लिए सारा कुछ जा रहा है। और इसी तरह यजीद को सपोर्ट मिली थी, आपको याद है कितने हज़ार उलमा थे, उन्होंने कहा जी 100% आप ठीक कह रहे हैं, ये नवासे रसूल से ये गलती हुई है, इज्तिहाद की गलती, सोच की फ़हम की गलती, इमेच्योरिटी का सबूत दे दी, ये बातें करते रहेंगे। फिर उसके बाद तो ये समझते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला छुट्टियों पे गया हुआ है, वो देख नहीं रहा। अगर ये सोचना शुरू कर देना कि वो ओमनी प्रेजेंट है, हमें वॉच कर रहा है, हम बड़ी स्क्रीन पे उसके सामने, और यूं करके वो देख रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, किसको धोखा दे रहे हो, हेलुसिनेशन का शिकार हैं ये सारे के सारे, खुद फरेबी, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, दूसरे को धोखा दे रहे हैं, रब्बे करीम को धोखा दे रहे हैं, जानते बूझते कि ये जो कुछ कर रहे हैं ये जुल्म का साथ है। वो जुल्म भी इनकी गर्दन पर आन पड़ेगा जो इन्होंने नहीं किया हुआ, क्योंकि ये मैकेनिज्म यही है। आप उस रास्ते पे चल निकले तो पीछे जो कुछ हुआ है, जो मासूम बच्चे कत्ल हुए हैं, उनका खून नाहक हमारी गर्दनों पे होगा। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।